हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान सिटी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल इज here is the most important. There is atmospheric carbon dioxide is there is the source of all carbon in both living organism as well as the fossil use as a fossil fuel. Then it is a highly soluble in water. The ocean also contain a large quantity of the dissolving carbon dioxide and bicarbonates. The carbon cycle is given as here. Compared to the flowing process. There is a first is photosynthesis. The photosynthesis is a terrestrial and aquatic plant utilize the carbon dioxide from a photosynthesis, and through this process, the inorganic form of carbon are converted into the organic matter in the presence of sunlight and chlorophyll, and the carbon dioxide is thus the fixed and the accumulated by a plant. It is partly used by them for their oven life process, and the rest is storage as their biomes, which is available to be heterotrophs to the food. And their next is respiration. The respiration is the metabolic process or the result of a photosynthesis in which the food is oxidized, is elaborate energy to perform to the various life process and the carbon dioxide and the water. Thus the carbon dioxide atmosphere recover through this process. And the next is decomposition. The decomposition here, after the death of organism, the decomposer break down to the remaining dead organic matter and release their leftover carbon as a back into the atmosphere. There is the most important, and the next is come here. There is a combustion. The combustion means the fossil fuel such as a crude oil is a coal, natural gas, heavy oil is a burning or release of carbon dioxide and the carbon monoxide into the atmosphere. The forest make a large amount of fossil fuel. The fossil fuel is a produce of complete or partial decomposition of plant and animal as a result of the exposure to be heat and pressure in their earth. It's a pressure over a million of years. The forest also act like a carbon reserves as a carbon fixed by them is a cycle very slowly due to their long life. The release of carbon dioxide by forest fire. And their next is a impact of the human activity. There is the most important here. A carbon dioxide is a continuously increasing the atmosphere due to the human activity, such as the industrialization, urbanization, and increasing of the is the automobiles. This is increasing of atmospheric CO2 is leading to the great house effect and the global warming. The here show the carbon cycle is very easy diagram here. There is a photosynthesis and goes the two sides is a atmospheric CO2 and green plant make a organic compound. There is a decomposition and respiration is a under of center, and there is also goes waste to the animal tissue. There is a eatings and the is a decompositions and respiration, and this other side is a fossilizations and combustion. There is a fossil fuel gas and petroleum cycle. There is a carbon cycle. There is the most important cycle here. दोस्तों यहाँ पर जो है कार्बन चक्र के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, कार्बन चक्र जो है कई क्लासों के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो ये आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं वायुमंडलीय में जो है कार्बन डाइऑक्साइड सभी प्रकार के कार्बन जीव प्राणी के साथ साथ जीवाश्म में भी जो है ईंधन के रूप में होते हैं का एक स्रोत होता है। यह जल में अत्यंत घुलनशील होते हैं और समुद्र में भी ये बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड व बाइकार्बोनेट घुले हुए होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जीव भी इसके लिए अनुसरण करता है। सबसे पहले तो बात यही आता है कि प्रकाश संश्लेषण में इसका क्या योगदान है। देखिए, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की बात किया गया है, तो आपको पता ही होगा कि स्थलीय जलीय पादप प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का ही उपयोग करते हैं, और इस प्रक्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश व पनरहित यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बनिक रूप में परिवर्तन भी होता है, और इस प्रकार कार्बन को स्थिरीकरण भी होती है, और यह पादप ग्रहण कर ली जाती है, और यह आंशिक रूप से उनकी स्वयं की जीवन प्रक्रिया को प्रयुक्त भी की जाती है, और शेष भाग जैव भार के रूप में संग्रहित किया जाता है। यह विषमपोषी जीवों के खाद्य के रूप में उपलब्ध रहता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है सभी प्लांटों के लिए एक अमृत तुल्य होती है, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग जो है वो अपना भोजन बनाती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, और ऑक्सीजन जो है मानव जाति के लिए अमृत तुल्य है। तो ये दोनों जो कम्बिनेशन होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल के रिगार्डिंग ही संभव हो पाती है।
आगे हमारा है श्वसन। देखिए श्वसन जो है कई मायने में इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी को हम कहते हैं सांस लेना। श्वसन एक औपचारिक क्रिया है जो कि प्रकाश संश्लेषण के विपरीत होती है। इसमें ऊर्जा मुक्त करने के लिए खाद्य का ऑक्सीकरण होता है। विभिन्न जैविक क्रियाएं संपन्न करने के लिए साथ ही जल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार इस प्रक्रिया का जो है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल को पुण्य उपलब्ध हो जाते हैं। यानी श्वसन क्रिया द्वारा जो होता है दोबारा जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध हो जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट बात रखता है। उसके पश्चात है अपघटन। देखिए जीवों की मृत्यु के पश्चात अपघटक शेष मृत जैव पदार्थ का अपघटन करते हैं, जबकि शेष कार्बन डाइऑक्साइड वापस वातावरण को उपलब्ध कराए जाती है। तो यह अपघटन भी काफ़ी मायने में इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है दहन। देखिए कोई चीज़ को दहन करते हैं तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही उत्पन्न होती है, ये आपको भी पता है। कहते हैं जीवाश्म ईंधन जैसे कच्चा तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस या भारी तेल जलने पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निष्क्रिय रहते हैं। वन भारी वर्षा में जीवाश्म ईंधन का निर्माण करती है और जीवाश्म ईंधन पृथ्वी की पटरी पर लाखों वर्षों की अवधि में पादपों एवं जंतुओं के पुण्य आंशिक अपघटन के द्वारा उष्मा व दाब के उत्पन्न होने के कारण ये संभव हो पाते हैं। इसमें वन भी कार्बन भंडार की भांति कार्य करता है क्योंकि उनके द्वारा आत्मसात की गति कार्बन उनकी लंबी जीवन अवधि के कारण बहुत धीमी गति से चक्रीय होते हैं। जंगल की आग के कारण कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो कि एक आम गतिविधियां देखी जाती है। कहते हैं मानव गतिविधियों का प्रभाव। अब देखिए मानव गतिविधियों का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। कहते हैं मानव गतिविधि जैसे कि औद्योगिकरण, शहरीकरण और मोटर गाड़ियों के बढ़ते प्रयोग के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सतत रूप से बढ़ती ही चली जा रही है। इसकी बढ़ोतरी के कारण जो है ग्रीन हाउस प्रभाव या वैश्विक ताप यानी ग्लोबल वार्मिंग दृष्टिगोचर होते जा रहे हैं। यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना आज के जीवन के लिए बहुत ही संकट का विषय माना गया है। इसका कारण यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है और लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे जो है दिन पर दिन काटते ही चले जा रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है, इंसान तो बढ़ रहा है लेकिन पेड़ पौधे घट रहे हैं। तो आपको ही समझ में इस बात को हो गया होगा कि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो इंसान जिंदा किस प्रकार रहेगा। जब पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन नहीं बनाएंगे तो ऑक्सीजन जो है जो इंसान है वो कैसे ले पाएंगे। तो इसलिए जो है आज संतुलन बिगड़ता चला जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण यही माना जाता है। तो ये सोचिए कि आने वाला भविष्य किस प्रकार होगा और किस प्रकार जो है इंसान जो है धरती पे बने रह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो दिखाया गया है आपको एक कार्बन साइकिल दिखाया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप देखोगे तो प्रकाश संश्लेषण सबसे ऊपर दिखे नजर आएगा। उसके बाद आपको आएगा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद हरे पादप कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। तो इसमें अपघटन और श्वसन दोनों ही क्रियाएं होती है। लेकिन अगर आप देखा जाए खाने में तो ये है प्राणी ऊतक जो है अपघटन और श्वसन के रूप में जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए जीवाश्मीकरण, तो जीवाश्मीकरण से क्या होता है, जीवाश्म ईंधन गैस और पेट्रोलियम कोयला को अगर आप जलाते हो तो इसे दहन करोगे तो इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी। तो ये क्रिया जो है कार्बन चक्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझने के लिए बहुत ही आसान है। तो इस डायग्राम को आप जरूर जो है कॉपी पर नोट करके बनाइएगा। कहते हैं ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए था।